जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। आप सुन रहे हैं अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। दिस इज एपिसोड 4, जी आया ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤਾਰਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਮਿਕ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रेल परिवहन का सफ़र करने का एक आम वसीला होने के कारण बंटवारे की इस दास्तान की एक बहुत अहम कड़ी है। कहते हैं कि सन 1947 में 15 अगस्त और 8 सितंबर के दरमियान ही करीब 7 लाख शरणार्थियों ने ट्रेन्स में सफ़र किया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आर पार ले जाने के लिए यात्री रेल के साथ साथ मालगाड़ियों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बावजूद ट्रेन्स में जगह की किल्लत उस वक्त की तस्वीरों और डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स में साफ झलकती है। ट्रेन्स अपनी क्षमता से कहीं अधिक भरी होती थीं। लोग ट्रेन्स की छत और दरवाजों में बैठकर कम से कम सामान के साथ सफ़र करने पर मजबूर थे। गुलजार साहब की एक कहानी है रावी पार, और उसकी एक लाइन है कि द ट्रेन वॉज एट रेलवे स्टेशन बट देयर वॉज नो स्पेस इन इट, पीपल सीम्ड टू ग्रो लाइक ग्रास ऑन इट्स रूफ। ये लाइन उस मंजर की बेबसी को साफ जाहिर करती है। If that kind of displacement wasn't tragic enough, on top of it trains were regularly attacked by rioting mobs. People were killed and looted. कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स थी जहां बताया जाता था कि entire trains were slaughtered by the time they reached their destination. विभाजन की इस कहानी में उन ट्रेन्स को गोस्ट ट्रेन्स के नाम से जाना जाता है। उनकी दहशत जिस तरह से लोगों पर असर रखती थी उसका बयान ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के इस अंश में मिलता है, जिसमें खुशवंत सिंह लिखते हैं कि A soft breeze began to blow toward the village. It brought the smell of burning kerosene, then of wood, and then a faint smell of searing flesh. The village was stilled in a deathly silence. No one asked anyone else what the odor was. They all knew. They had known it all this time. The answer was implicit in the fact that the train had come from Pakistan. दहशत और गम के मारे सुन हो जाना, खामोश हो जाना उन दिनों में आम बात थी। लोग अपनी सिसकियां निगलकर गुमसुम से बस किसी तरह सांस लिए जा रहे थे। Trains were also a trigger point of trauma for a lot of people, and its evidence is presented in this poem called Gaddi Aa Gayi by Imtiaz Dharkar. It happened like this. Their country slipped out of their hands and broke like a cup or an earthen pot. They never spoke as if they remembered the shape it used to have. They never cried over spilt blood, at least not in front of us. It was as if you reassure a guest, "Oh, don't mind that. It was only a cheap old cup and anyway, broken china brings good luck." And a whole generation swallowed the nightmares that sounded like trains. Gaddi aa gayi station te. Gaddi aa gayi station te. When the train came in to its destination,
The station drank up the names of their aunts and uncles, their neighborhoods and cities, and our mothers and fathers swallowed the nightmares that sounded like trains. Gaddi aa gayi station te. Gaddi aa gayi station te. They swallowed the things they remembered and the cousins who had gone away, with the ghost of the place that broke with the cup. One day, when my mother was planting potatoes in another country, she dug up a fragment of china and looked at it, as if she remembered something that had never been spoken. Gaddi aa gayi station te. Gaddi aa gayi station te. Something she dug out of the nightmares, something unbroken. She said the neighbors from the other side were kind. They took her in and hid her. They pretended she was one of their own until they could send her home to the country with a different name, to the station on the other side on another train. Gaddi aa gayi station te. 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 ये दौर जितना मुश्किल अवाम पर था, उतना ही मुश्किल शायद इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेल मंत्री के लिए भी रहा होगा. Those days, railway companies were owned by the British or the native states in the subcontinent. Partition meant several issues that needed urgent attention of then Railway Minister Dr. John Mathai. चाहे बजट हो, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एसेट एलोकेशन का मसला हो, रेलवे कर्मचारियों का हिजरत कर जाने के कारण कर्मचारियों की कमी की बात हो, या कुछ और, आज़ादी अपने साथ कई इम्तिहान लेकर आई थी. Because of this mass and forced migration, railwaymen battled so many odds such as lack of manpower and resources, virtual breakdown of law and order, and a huge number of refugees who were miserable and unmanageable along with heavy floods in the monsoon. And the Assam Railway was totally cut off from the rest of India. विभाजन का मतलब था कि रेलवे के कुछ हिस्से अपने मूल रेलवे से पूरी तरह से अलग हो गए थे. इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने सहमत व्यवस्था के तहत एक दूसरे को कार्यशक्ति यानी कि रनिंग पावर प्रदान की. रेलवे पोस्ट का एक आर्टिकल कोट करूं तो कहते हैं कि रेलवे हैड टू एंड्योर ऑल दिस व्हाइल परफॉर्मिंग एन एम्पुटेशन सर्जरी ऑन इटसेल्फ. परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है कि रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, उसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाज़ा हुआ. अब तक जो बात हमने की है वो दहशत के बीचों बीच घट रहे हादसों की बात की है, पर इस हिज्र के, इस पिछोड़े की दास्तान की तमहीद यानी इंट्रोडक्शन उन सटल एट्रॉसिटीज़ में भी थी जो आज़ादी के कुछ महीने पहले से ही नज़र आने लगी थी. कितने पाकिस्तान, जो कि हिंदी साहित्य का एक क्लासिक नॉवल है, उसकी शुरुआत में ही कमलेश्वर सुनाते हैं अदीब और विद्या की पनपती और गुम होती मोहब्बत की एक दास्तान. पेश खिदमत है वामिक और मेरी आवाज में. अजीब दिन थे, नीम के झरते हुए फूलों के दिन, कनेर में आती पीली कलियों के दिन, ना बीतने वाली दोपहरियों के दिन, और फिर एक के बाद एक लगातार बीतते हुए दिशाहीन दिन. उन दिनों भविष्य कहीं था ही नहीं, एक व्यर्थ वर्तमान साथ था जो बस चलता जाता था. ये आज़ादी से ठीक पहले का दौर था. रेलगाड़ियों में आरक्षण की सुविधा और सिस्टम नहीं था. अब उसे याद नहीं, विद्या शायद साइंस में थी, पर छुट्टियां साथ साथ होती थी, इसलिए वो इलाहाबाद स्टेशन पर ही मिल जाते थे. विद्या फतेहगढ़ की थी. तीज त्योहार और फिर गर्मियों की छुट्टियां, अपने अपने घर जाने के लिए एक आध बार तो अदीब से ऐसे ही मुलाकात हुई. फिर जब भी कोई छुट्टी आती तो स्टेशन पर एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे. ना मालूम ये कैसा लगाव था कि प्लेटफॉर्म पर एक तब तक रुका रहता था जब तक दूसरा आ नहीं जाता था. अनकहे तरीके से ये तय हो गया था कि छुट्टी होने वाले दिन की सुबह पहली पैसेंजर गाड़ी से ही सफ़र किया जाएगा. उन दिनों में भी कुछ तेज़ एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती थी, पर उन दोनों को पैसेंजर ही पसंद थी. वो धीरे धीरे चलती और हर स्टेशन पर रुकती थी. उन दोनों को साथ साथ सफ़र करते छोटे छोटे स्टेशनों के नाम रट गए थे. अब बमरौली आएगा, अब मनौरी, अब सैयद सरावा, और फिर भरवारी और सिराथू, उसके बाद फतेहपुर
और फिर कानपुर। स्टेशनों के नाम वे साथ साथ पढ़ते थे और किस स्टेशन पर कितनी जल क्षमता वाली टंकी विशाल कुकुरमुते की तरह खड़ी है ये भी उन्हें याद हो गया था। इंजन किस स्टेशन पर पानी लेगा ये भी उन्हें पता था। कुछ ऐसा भी था जो दोनों को एक साथ व्यापता था। उनके मन की अनकही इच्छाओं के पल एकाएक एक साथ जुड़ जाते थे। अब यही जैसे भरवारी स्टेशन के समोसे, अभी विद्या कहने को ही होती थी कि वो बोल पड़ता था, खट्टी चटनी या फिर फतेहपुर की दही पकौड़ियों पर मीठी चटनी। कभी कभी वो भागते पेड़ों में से किसी एक को सहसा एक साथ देखते। फिर कुछ स्टेशनों का साथ, और चाहते तो दोनों नहीं थे, पर कानपुर आ ही जाता था। विद्या वहीं उतरकर फतेहगढ़ वाली गाड़ी बदलती थी। कानपुर से उसे छोटी लाइन पकड़नी होती थी जिसका प्लेटफॉर्म आखिरी था। बीच में बड़ी लाइन के कई प्लेटफॉर्म थे। उन दिनों टाटा और बाय बाय नहीं होता था। फ्लाइंग किस तो था ही नहीं। खामोशी की गहराई ही शायद लगाव का पैमाना था। विद्या चुपचाप उतरती थी। अदीब उसका झोला या टीन का छोटा बक्सा या किताबों का बस्ता उठाकर थमा देने में मदद कर देता था। उन दिनों लेट होने पर गाड़ियां भी एक दूसरे का इंतजार कर लेती थीं। विद्या अच्छा कहकर पुल पर चढ़कर अपनी गाड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर चली जाती थी। वो उसे छोड़ने या विदा देने नहीं जा पाता था क्योंकि जब तक उसकी मेन लाइन की गाड़ी छूट सकती थी। कानपुर से उसका सफर शिकोहाबाद जंक्शन तक जारी रहता था जहां से वो ब्रांच लाइन की गाड़ी पकड़कर अपने मैनपुरी पहुंचा करता था, मां के पास। शिकोहाबाद से मैनपुरी तक के 3 स्टेशनों के नाम तो उसे याद थे, पर कहां किस स्टेशन पर पानी की टंकी थी और छोटे से सफर में कौन से पेड़ साथ दौड़ते थे वो उसे याद नहीं थे। विद्या भी सफर में साथ होती तो शायद उसे वो पेड़ याद रहते। छुट्टियों से लौटने का दिन और इलाहाबाद तक जाने वाली पैसेंजर गाड़ी भी अनकहे तरीके से तय हो गई थी। लौटते समय वो कानपुर तक मेन लाइन की गाड़ी से आता था, लेकिन कानपुर से पैसेंजर ही पकड़ता था। छोटी लाइन से आकर विद्या उसे प्रतीक्षा करती मिलती थी। मिलना, प्रतीक्षा और साथ साथ सफर करना, ये 2 साल तक चलता रहा। फिर वो साल भी आया, गर्मी की लंबी छुट्टियां हुई, वही इलाहाबाद स्टेशन, वही पैसेंजर गाड़ी। लेकिन इस बार स्टेशनों का नज़ारा कुछ बदला हुआ था। गाड़ी में चढ़ने वाले मुसाफिर औसत से ज़्यादा खामोश थे। सैयद सरावा स्टेशन पर सब स्टेशनों से ज़्यादा भीड़ थी। सफ़र में ज़्यादातर मर्द ही मिलते थे, पर इस बार उनके साथ औरतें और बच्चे भी थे। टीन के बक्सों, बोरों, गठरियों, पोटलियों वाला सामान भी ज़रूरत से ज़्यादा था। गाड़ी छूटी तो प्लेटफॉर्म पर रुककर कोई खुदा हाफिज कहकर विदा करने वाला नहीं था। मुसाफिरों में चलती आपसी बातचीत के दौरान पता चला था कि वो किसान खानदान पहले अलीगढ़ जा रहे थे, वहां से पाकिस्तान चले जाएंगे। आखिर कानपुर स्टेशन का यार्ड गुजरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। विद्या को यहीं उतरना था। प्लेटफॉर्म आया, विद्या उतरी। हमेशा की तरह उतरकर उसने विद्या को सामान थमाया। तब विद्या ने इतना ही कहा, शायद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अगले साल ना आ सकूं। क्यों? घर वाले यही चाहते हैं। ये एक सहज सूचना थी जिससे दोनों ने ही कुछ असहज महसूस किया। उनके बीच अलिखित और अव्यक्त भावनाओं का रिश्ता तो शायद बहुत गहरा था, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें जवाब मांगने के लिए मजबूर करे। आखिर छोटी लाइन की अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए वो पुल पर चढ़ने लगा। विद्या की गाड़ी छूटने का समय हो रहा था और अदीब की गाड़ी भी छूटने को थी। और बस तब इस दास्तान में इतना ही हुआ था कि पुल पर पहुंचकर अपने प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ने से पहले विद्या ने अपना रुमाल ऊपर से गिराया था। उसकी गाड़ी उसी समय आखिरी सीटी देकर खिसकने लगी थी। उसका डिब्बा भी काफ़ी आगे था। अदीब ने रुमाल को गिरते हुए देखा था। उसके लिए वो अटका भी था, पर प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी को वो नहीं छोड़ पाया था। सफ़र तो सफ़र था। ना वो विद्या का वो रुमाल उठा पाया, ना अपना सफ़र तोड़ पाया। चलती गाड़ी में वो चढ़ा और अपनी जगह जाकर बैठ गया। आगे का सफ़र जारी था, उसका भी और उन मुसाफिरों का भी जो अलीगढ़ होते हुए पाकिस्तान जा रहे थे।
विद्या का भी, जो गाड़ी बदलकर फतेहगढ़ की ओर चली जा रही होगी। बैठे बैठे वो यही सोचता रहा कि अगले साल अब विद्या नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि उसके घर वालों ने कहीं उसका रिश्ता तय कर दिया होगा और इन्हीं गर्मियों में उसकी शादी हो जाएगी। शिकोहाबाद जंक्शन आया तो वो उतर पड़ा। उसे मैनपुरी वाली गाड़ी पकड़नी थी। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों का सफ़र अलीगढ़ की तरफ जारी था। उन गर्मियों के बाद फिर विद्या उससे कभी नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ किस सफ़र पर निकल गई। बस इतना ज़रूर हुआ कि ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में जब भी वो कानपुर स्टेशन से गुजरा तो वो रुमाल उसे हमेशा गिरता हुआ दिखाई देता रहा। दिखाई ही नहीं देता रहा, वो रुमाल सचमुच गिरता रहा। वो रुमाल आज भी गिरता है। अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, एक रेल जा रही थी कि तुम याद आ गए। ये नॉवेल इतिहास के दरवाजे पर एक दस्तक है, गलतियों को सुधारने की दस्तक, अमन और मोहब्बत के हक में फैसले लेने की दस्तक। अब चाहे वो दर्शन सिंह का चलती ट्रेन की छत से अपने दम तोड़ते नवजात बच्चे को रावी के सुपुर्द करने का किस्सा हो, या सरहदों पर सवाल उठाते शहीद मोहब्बत बूटा सिंह का रेल की एक पटड़ी पर दम तोड़ देने का किस्सा। रेलवे और ट्रेन्स का रोल हमेशा हमारे सामने आता रहा है, क्योंकि जो रेल्स थी, जो ट्रेन्स थी, they were witnesses, they were shelters, they were carriers and they were also sadly graves of our loved ones। बहुत सारे ओरल हिस्ट्रीज में जब हम उन यात्रियों का, उन रिफ्यूजीज का, शरणार्थियों का अकाउंट सुनते हैं जो उस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी जान बचाते, छुप छुपाते, कभी कभी सीटों के नीचे बैठकर भी अपने मुल्क पहुंचने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक दूसरे की बेहद मदद कर रहे थे, जो मोहब्बत और अमन का परचम तब भी फहराए हुए थे, जो किसी को छुपाकर, बचाकर सरहद पार कराने की पूरी कोशिश करते थे। आज़ादी के 3 दशक के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौता हुआ था, शिमला अग्रीमेंट। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रेन शुरू की गई थी जिसको समझौता एक्सप्रेस कहते थे। पर हर समझौते की उम्र की तरह इस कोशिश की भी उम्र कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी और कुछ साल जद्दोजहद के बाद इस कोशिश ने भी दम तोड़ दिया। फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी ट्रेन आ जा नहीं रही। जाते जाते बस यही दुआ है कि अब अगर कोई ट्रेन इंडिया या पाकिस्तान के दरमियान चले, उसमें सिसकियां नहीं, ठहाके गूंजें, वो बिछड़े हुए अपनों को मिलाने का वसीला बने। आमीन। आप सुन रहे थे अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। ये जो पॉडकास्ट है, ये वो जगह है, वो खिड़की है जहां अपने अपनों से मिलते हैं, जहां सरहदें सराब होती हैं, जहां नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहां किताबे इश्क का अगला वर्का खोला जाता है। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ भी जरूर बांटें। अब मुझे इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।